Good morning to all my dear students of class 6. Students, this is Priyanka Arora and I welcome you all to your virtual classroom of mathematics. So students, once again I am back with my new video, and in my last video I have explained you all the questions of exercise 7.1 of chapter number 7, Introduction to Algebra. And in today's video, students, I will be explaining you all the questions of exercise 7.2 of this same chapter, Introduction to Algebra. In this, you will learn about various properties. Okay, so let's begin with it. So students, question number first of exercise 7.2 is, the side of a regular heptagon is denoted by letter L. Express the perimeter of the heptagon using the variable L. Here, in this particular question, you can see one figure is given and this particular figure is having 7 sides. इस figure के अंदर 7 sides है और हर side को denote किया गया है letter L के साथ में. Students, those figures which are made up of line segments are called as polygons. वो फिगर जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं उनको कहा जाता है polygon. So this is also a type of polygon and this particular polygon is having 7 sides. इस polygon के अंदर total 7 sides हैं और वो polygon जिसमें 7 sides होती हैं उसको कहा जाता है heptagon. So this is basically a heptagon and here each side of heptagon is denoted by small letter L. Okay, so this is the information given regarding this particular question and it is asked to find the perimeter of this figure, this heptagon, and the formula of finding the perimeter of any polygon. अगर कोई भी polygon हो आपके पास में और उसका आपको perimeter find out करना होता है तो उसका formula होता है sum of all sides. Perimeter होती है basically boundary of the figure. जो figure होती है उसकी boundary का sum कहलाता है perimeter. तो यहाँ पर ये जो figure है इसकी outside जो boundary है इस boundary का sum ही हमें find out करना है. अगर normally यहाँ पर कोई number given होता तो हम easily find out कर लेते numbers को ऐड करके, बट अभी यहाँ पर नंबर नहीं गिवन है क्योंकि ये अलजेब्रा टॉपिक है. तो अलजेब्रा के अंदर लेटर्स गिवन होते हैं, वेरिएबल्स गिवन होते हैं, तो यहाँ नंबर की जगह गिवन है लेटर एल एंड एक वर्ड है क्वेश्चन के अंदर. उस वर्ड पे आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वो वर्ड है रेगुलर. रेगुलर का मतलब होता है इक्वल. कभी भी रेगुलर वर्ड अगर पॉलीगन के अंदर आता है तो उसका मतलब होता है इक्वल. That means ये जो हेप्टागन है इसकी सारी साइड्स इक्वल है, मेजरमेंट इक्वल है. तो अगर एक साइड का मेजरमेंट L है तो सारी साइड का मेजरमेंट L होगा बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेप्टागन. क्योंकि ये एक रेगुलर हेप्टागन है और रेगुलर हेप्टागन होने के कारण इसकी सारी साइड्स का मेजरमेंट लेटर L की होगा. अब अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? सी what I have written. Firstly, heptagon has 7 sides. The side of regular heptagon is equal to letter L and here we have to find the perimeter of heptagon. So the formula of finding the perimeter will be sum of all sides. सारी sides को जब आप add करोगे तो आपके पास में result आ जाएगा perimeter of heptagon और यहाँ पर सारी sides का measurement क्या given है? letter L. So हम क्या करेंगे? इस लेटर L को हम ऐड करेंगे. टोटल 7 टाइम्स लेटर L हम मेंशन करेंगे बिकॉज हेप्टागन के अंदर है टोटल 7 साइड्स. तो आप 7 टाइम्स लेटर L को मेंशन करेंगे एंड देन आपको उसको ऐड करना होगा. तो देखिए आई हैव रिटन हियर लेटर L 7 टाइम्स. नाउ अगर लेटर L 1 टाइम लिखा जा रहा है, अगर हम एक बार ही लिख रहे हैं लेटर L को तो इसके आगे कोई नंबर नहीं मेंशन है. कितनी बार है लेटर? ओनली 1 टाइम. तो हम यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे 1L. इसी तरीके से हमने 7 टाइम्स लेटर L को अगर मेंशन किया है तो 7 टाइम्स मेंशन करने के कारण इसके साथ में क्या आएगा? 7 और फिर आ जाएगा लेटर
7L, तो इस पर्टिकुलर फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा 7L. Okay, so that was question number 1. Now let us move on to question number 2. See students, question number 2 is the order in which three numbers are added will not change their sum. वो ऑर्डर जिसके अंदर हम थ्री नंबर्स को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, तो उसका सम सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है. दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी which we have discussed in chapter number 3 of your maths book, that is whole number chapter. I suppose you must have remembered those property. If suppose you don't remember that property, then I will leave the link of that particular video in description box. You please check the description box of this video. You will get the link of that video. You please watch that video to know about all the properties of whole number. Those properties only will come into use in this particular chapter also. So there I have told you, when we add three numbers in any order, then its sum remains same both the sides. Okay, अगर आपको ध्यान हो तो हमने डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, कोई भी तीन नंबर मैंने ले लिए 3, 5 और 15. सपोज मैंने ये तीन नंबर ले लिए. अब इन तीन नंबर्स को मैं किसी भी ऑर्डर में ऐड करूं, लाइक मैंने लिखा 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर मैंने ले लिया 5 प्लस 15 एक तरफ, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड के अंदर पहले मैंने ब्रैकेट में ले लिया 3 प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर मैंने ले लिया नंबर 15. टोटल इन तीन नंबर्स को ही यूज में लिया गया है, बट इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है. यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है नंबर 3 और ब्रैकेट के अंदर है 5 एंड 15, और दूसरी तरफ ब्रैकेट के अंदर है 3 एंड 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 15. अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सम क्या आ जाएगा, 15 और 5. ब्रैकेट को पहले आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20, और 20 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नंबर 23. और राइट हैंड साइड के अंदर आप कैलकुलेट करके देखिए कि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है. तो देखिए राइट हैंड साइड में भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो 3 और 5 को आप करिए पहले ऐड. सो 3 प्लस 5 हो जाएगा 8. उस 8 में आप 15 को ऐड करिए. सो 8 प्लस 15 विल गिव यू अगेन 23. सो देखिए किसी भी ऑर्डर के अंदर हमने इन नंबर्स को, थ्री नंबर्स को ऐड किया, बट उसका जो सम था वो सिमिलर ही आया लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी. सो ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वेयर वी यूज थ्री numbers, 1 outside the bracket and 2 inside the bracket. Okay, but in this particular question numbers are not given. Since this is algebra chapter, so in place of numbers variables are given. In place of numbers we have to take here three variables, that is letter A, B and C. और इन variables को use में लेते हुए हमें इस property को define करना है इस question में. So see here three variables are given which are A, B and C. The order in which three numbers are added will not change their sum is known as the associative property of addition. वो order जिसके अंदर हम three numbers को add करते हैं but उसका जो sum होता है वो change नहीं होता है. हम किसी भी order में अगर उसको add करें but उसका sum same ही रहता है, तो ऐसी property को, जैसा कि मैंने अभी बताया, कहते हैं associative property of addition. So see here using this property and the variables how we will generalize it. So see यहाँ पर left hand side में मैंने दो letters को bracket में mention किया है, first two letters को, तो A plus B आ जाएगा bracket के अंदर और bracket के बाहर आ जाएगा letter C. और right hand side में letter A bracket के बाहर है plus जो दो letters हैं वो bracket के अंदर है B plus C. यानी कि दोनों तरफ जो है वो order change हो गया है, यहाँ पर अलग order है, यहाँ पर लेटर A और लेटर B ब्रैकेट के अंदर है और लेटर C बाहर है, जबकि राइट हैंड साइड में लेटर A ब्रैकेट के बाहर है और लेटर B और लेटर C ब्रैकेट के अंदर है. सो किसी भी ऑर्डर के अंदर हम इसको क्यों ना लिख लें, इसका सम सेम ही आएगा. सो बस कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है इसके अंदर. बस मैंने आपको नंबर के साथ में एग्जाम्पल दिया ही था, बस यहाँ नंबर ना पुट करके हमें क्या पुट करना है, वेरिएबल्स पुट करने हैं. तो इन वेरिएबल्स को यूज में लेते हुए इस तरीके से आप इस रूल को डिफाइन करेंगे. ओके, नाउ question number 3 is
राइट द जनरल रूल टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। हमें यहाँ पर रूल को यूज में लेते हुए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं और चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। फाइन। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं गिवन है कि स्क्वायर की साइड का मेजरमेंट कितना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइड को लेट करेंगे कि साइड का मेजरमेंट इमेजिनरी है एंड इट इज लेट द इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर बी लेटर ए। यहाँ पर जो हमने कंसिडर किया है वो हमने कंसिडर किया है लेटर ए, वेरिएबल ए। तो फॉर्मूले के अंदर आप इसको पुट करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारा 4 इंटू साइड। तो साइड की जगह पर आपको यहाँ पर क्या पुट करना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, अगर नंबर होता, सपोज हर साइड का मेजरमेंट होता 5, तो आप क्या करते, साइड की जगह पुट करते 5, तो 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता 20। बट अभी यहाँ पर साइड नहीं गिवन है, यहाँ पर हमने लेट किया है साइड को a, हमने माना है कि साइड कितनी होगी a, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे a से, तो 4 को जब आप वेरिएबल a से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4a। सो दिस इज द रूल ऑफ फाइंडिंग द perimeter of square using the letter A. Okay? Now, question number 4, and it is, if a number is multiplied by 1 or if 1 is multiplied by the number, the result is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट वापस वही नंबर आता है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं 65 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ नंबर 1 से, या फिर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 को 65 से, जो रिजल्ट आएगा दोनों ही केसेस में वो क्या आएगा, 65 ओनली। आप अगर 65 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 65 आएगा, या 1 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर तो वापस वही आएगा जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर मैंने 65 से ही मल्टीप्लाई करा है, 1 को 65 से और 65 को 1 से, तो मेरा आंसर 65 ही आया है। हमें इस प्रॉपर्टी को वेरिएबल के साथ में यूज में लेते हुए डिफाइन करना है। ओके, यहाँ पे नंबर नहीं गिवन है, हमें खुद को वेरिएबल लेना है। पहले तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कभी भी हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। ओके, this property also I have taught you in chapter number 3, whole numbers. So please check the description box, you will get the link of that video. So here I am taking the variable as x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इस प्रॉपर्टी को हमें वेरिएबल के साथ में डिफाइन करना है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं लेटर x. You can take any variable, it is not compulsory to take x only. Now अब अगर हम इसको रूल के अंदर पुट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, यहाँ मैंने क्या करा था, नंबर लिया था तो 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या किया है हमने, नंबर ना लेके वेरिएबल लिया है, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, या फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से। आप x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्ट x आएगा, या आप 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो भी आपका रिजल्ट x ही आएगा। तो यहाँ पर आप दो प्रॉपर्टी बोल सकते हो, या तो आप इसको बोलो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, या फिर आप इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हो। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको रूल बताया था स्टूडेंट्स के अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, उसका सम सेम ही आता है। आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो या आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, दोनों केसेस के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज यूज में ले सकते हैं, या तो आप इसको कहिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्योंकि हम इसको वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप इसके अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज में ले सकते हो, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यही होता है हम किसी भी ऑर्डर में करें, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑर्डर चेंज करा है, x पहले था 1 बाद में था, और राइट हैंड साइड में 1 पहले है x बाद में है, तो इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, बट इसका रिजल्ट दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में इक्वल आया है। तो इन दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज में ले सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड इट इज व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, द ऑर्डर इन विच दे आर मल्टीप्लाइड विल नॉट चेंज देयर प्रोडक्ट। अभी हमने इस प्रॉपर्टी को प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, मैंने अभी आपको बताया था
कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो उसका जो रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रिजल्ट सेम ही आता है, विल नॉट चेंज देयर प्रोडक्ट. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो इस प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है. एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी इन अ जनरल वे यूजिंग वेरिएबल्स. तो इस प्रॉपर्टी को हमें जनरलाइज करना है वेरिएबल्स को यूज में लेते हुए. अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर दो नंबर्स के साथ में एग्जांपल देके बताया था स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैं दो नंबर्स को जैसे चेंज कर देती हूँ. सपोज मैं यहाँ पर ले रही हूँ टू नंबर्स 7 एंड 8. तो अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देती हूँ, मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो दोनों ही केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जब आप 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 56 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जब आप 8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, 56 ही आएगा. दोनों जगह जो रिजल्ट होगा वो सिमिलर आएगा, रिजल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. हमने ऑर्डर चेंज किया बट फिर भी जो रिजल्ट है वो दोनों जगह सेम रहा. ओके, बट यहाँ पे हमें नंबर्स के साथ में इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं करना है, हमें वेरिएबल्स के साथ में इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करना है. तो दो नंबर्स की जगह यहाँ पे मैंने जो दो वेरिएबल्स लिए हैं इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, वो मैंने वेरिएबल्स लिए हैं लेटर ए और लेटर बी. सो सी, अब इन दो वेरिएबल्स को यूज में लेकर हम किस तरीके से अपने रूल को जनरलाइज करेंगे. सो सी, इट विल बी जनरलाइज इन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज, जैसे यहाँ पर मैंने दो नंबर लिए थे तो कैसे उसको मेंशन किया था, 7 into 8 इज इक्वल्स टू 8 into 7. तो इसी को अगर मुझे वेरिएबल के साथ में करना है तो मैं क्या करूंगी, दो वेरिएबल लिए मैंने ए और बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूंगी ए इंटू बी और राइट हैंड साइड में इसका ऑर्डर चेंज कर दूंगी तो हो जाएगा बी इंटू ए. तो देखिए इस तरीके से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वेयर वी कैन मल्टीप्लाई द टू नंबर्स इन एनी ऑर्डर बट द रिजल्ट विल रिमेन same both the sides. Okay, now question number 6, find a rule for perimeter of hexagon if the length of each of its side is letter L. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में स्टूडेंट्स मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी हेप्टागन के बारे में, और हेप्टागन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हेप्टागन में टोटल 7 साइड्स होती हैं. तो वो पॉलीगन जिसके अंदर 7 साइड्स होती हैं वो कहलाता है हेप्टागन. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है कि यहाँ पर जो फिगर है वो है हेक्सागन. ओके, हेक्सागन भी पॉलीगन होता है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, और हेक्सागन के अंदर होती है स्टूडेंट्स 6 साइड्स. ओके, सो बेसिकली जो सॉल्यूशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही सॉल्यूशन यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर होगा. वहां बस हेप्टागन था और यहाँ हेक्सागन है. वहां पर भी ईच साइड का मेजरमेंट लेटर एल था और यहाँ पर भी ईच साइड का मेजरमेंट लेटर एल है. सो सी, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज लेटर एल, एंड हेक्सागन के अंदर जैसा कि मैंने बताया टोटल 6 साइड्स होती है. वहां भी हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला वही होगा सम ऑफ ऑल साइड्स. और यहाँ पर जैसा कि साइड्स लेटर एल है तो आप लेटर एल को 6 टाइम्स यहाँ पर मेंशन करेंगे. 6 टाइम्स मेंशन करा है हमने तो यानी कि 6 टाइम्स आ जाएगा हमारा लेटर एल, नंबर 6 आ जाएगा और उसके साथ में लग जाएगा वेरिएबल एल, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 6L. So this is how you have to find the perimeter of hexagon. Okay. Now question number 7. It is write a general rule to find the perimeter of. यहाँ पर भी हमें जनरल रूल लिखना है. जनरल रूल कभी भी लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर हम जनरल रूल को वेरिएबल्स को यूज में लेकर ही शो करेंगे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल को ध्यान में रखते हुए जनरल रूल डिफाइन करना है. सो सबसे पहले आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है. वो ट्राइंगल जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल होती है वो होता है आइसोसेलेस triangle. A triangle which has two equal and one unequal side is called as isosceles triangle. Okay, so यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे इसको
बाय टेकिंग द वेरिएबल। अब दो इक्वल साइड होती है इसके अंदर, तो हम कंसिडर करेंगे कि जो दो इक्वल साइड है वो है लेटर ए के साथ में हम इसको डिफाइन करेंगे, और जो एक अनइक्वल साइड होती है उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है लेटर बी के साथ में। आपको पता है ट्राइंगल के अंदर टोटल 3 साइड्स होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आइसोसेलेस के अंदर दो इक्वल साइड्स होती हैं और एक अनइक्वल साइड होती है। तो यहाँ पर जो दो इक्वल साइड है उसको हमने लेटर ए के साथ में डिनोट किया है, और एक अनइक्वल साइड है उसको हमने लेटर बी के साथ में डिनोट किया है। नाउ पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर भी हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम। और साइड्स हमने यहाँ पे क्या ली थी, हमने दो साइड्स ली थी लेटर ए और एक साइड ली थी लेटर बी, तो हम ऐड कर लेंगे a प्लस बी। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, दो बार लेटर ए आ रहा है तो आंसर आ जाएगा 2a प्लस एक बार लेटर बी आ रहा है तो आ जाएगा लेटर बी। So finally इसका आंसर हो जाएगा 2a plus b is how we have to find the perimeter of isosceles triangle using the variables। इन variables को use में लेते हुए हम इस तरीके से isosceles triangle का perimeter define करेंगे। Okay, clear? Now the next general rule we have to create for scalene triangle. Now scalene triangle is a triangle which is having all three unequal साइड्स। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है स्टूडेंट्स जिसके अंदर तीनों साइड्स का मेजरमेंट डिफरेंट होता है। ओके, इसके अंदर कोई भी एक साइड का मेजरमेंट सिमिलर नहीं होता है। ये भी ट्राइंगल है, इसमें भी तीन साइड्स होती हैं और तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की होती है। सो सी अ ट्राइंगल विच हैज ऑल थ्री साइड्स ऑफ अनइक्वल मेजर इज कॉल्ड एज एन स्केलन ट्राइंगल। यहाँ पर भी हमें वेरिएबल्स को यूज में लेते हुए डिफाइन करना है रूल को, तो तीन आप कोई भी डिफरेंट वेरिएबल इसके अंदर यूज में ले सकते हो। लाइक मैंने जो तीन वेरिएबल यहाँ पर यूज में लिए हैं डिफरेंट, वो है लेटर ए, लेटर बी और लेटर सी। ये तीन वेरिएबल्स यूज में लिए हैं। सी लेट द थ्री अनइक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर लेटर ए, बी एंड सी। अब इन तीन डिफरेंट वेरिएबल्स को यूज में लेते हुए हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला वही होगा जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया है, पेरीमीटर ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। और यहाँ पर जो हमने साइड्स ली हैं वो ली है लेटर ए, लेटर बी और लेटर सी, तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा a प्लस बी प्लस सी, विच इज द आंसर इन वेरिएबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट इज the distance traveled by a vehicle in a particular period of time can be obtained by multiplying the speed of a vehicle by time. Therefore distance is equals to speed into time। अगर हमें किसी भी व्हीकल की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितने टाइम के लिए वो व्हीकल चली है उस टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं व्हीकल की स्पीड के साथ में। ओके, तो हमारे पास में कैलकुलेट हो जाता है डिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला भी गिवन है क्वेश्चन में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, टेकिंग टू वेरिएबल्स फॉर स्पीड एंड टाइम। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में स्पीड की जगह कोई एक वेरिएबल लेना है और टाइम की जगह हमें कोई एक वेरिएबल लेना है और इसका रूल फाइंड आउट करना है। अगर इस क्वेश्चन को मैं आपको वैल्यूज के साथ में अगर एक्सप्लेन करती हूँ, तो जैसे अगर कोई भी व्हीकल है, वो व्हीकल 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जो स्पीड होता है उसकी जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर होती है, और कितने टाइम के लिए वो चली है, वो चली है 10 आवर्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 15 किलोमीटर पर आवर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा इसके अंदर। ओके, 10 आवर्स के लिए चली है ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10 आर, एच आ जाएगा यहाँ पर। अब एच और एच तो कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर 15 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मीन्स आ जाएगा 150। तो जो भी वो पर्टिकुलर व्हीकल थी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी 10 आवर्स तक, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यही हमको शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर यूजिंग द वेरिएबल्स। सो सी how we will be doing it. Let the variables to represent
हम यहाँ पर जो वेरिएबल ले रहे हैं, स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं लेटर s, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ले रहे हैं लेटर t एंड डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ले रहे हैं लेटर d। ओके, और फॉर्मूला क्या था हमारा जो कि क्वेश्चन में गिवन था, रूल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये क्वेश्चन था। और यहाँ पर हमने डिस्टेंस की जगह क्या लिया है, लेटर d लिया है, स्पीड की जगह हमने क्या लिया है, लेटर s, और टाइम की जगह हमने क्या लिया है, लेटर t। सो अगर आप इसको आगे सॉल्व करके दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू एस टी। इस तरीके से आपका आंसर वेरिएबल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? So students, here I have given you the explanation of all questions of exercise 7.2 chapter number 7 introduction to algebra, and I hope the explanation of all these questions must be clear to you. If suppose you are having any doubt, then mark your doubt and ask me in the live class of maths. Okay students, so I am ending my lecture here only and will see you back in the next video with exercise 7.3. Till then, take care of yourself and thank you so much.